Good morning, dear students. To be continued, lesson number 5th, The Tale of Peter Rabbit. Last video, we came to know about the summary of the lesson. So, students, in this video, I will explain the lesson in detail. So, let's start it. The Tale of Peter Rabbit. Four little rabbits, Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter, lived with their mother in a sandbank underneath the root of a big fir tree. So, students, here four rabbits lived with their mother in a sandbank. Names of the rabbits are Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. Run along, my dears. Remember, don't get up to any mischief. Don't go into Mr. McGregor's garden. And one day, these four rabbits and their mother went for walking. That time, mother warned to them, don't get up to any mischief. Mischief means harm. वहाँ पर कुछ भी एक दूसरे का नाम लेना नहीं है और कुछ भी मिसचिफ जिससे हमें नुकसान होगा ऐसी कौन सी भी चीज़ करना नहीं है। और उनके मदर ने उनको एक वार्निंग दी थी, क्या? डोंट गो इनटू मिस्टर मैग्रेगर्स गार्डन. Flopsy, Mopsy, and Cottontail, who always listened to their mother, went to gather blackberries. And these between four, three of them, Flopsy, Mopsy, and Cottontail, always listened to their mother, and that's why they went to gather blackberries. But Peter though ran straight to Mr. McGregor's garden, where he ate some lettuce and some French beans. Then, feeling a little sick, he went to look for some parsley. But Peter, उसके मदर ने, उसके मम्मी ने बोला था तभी भी मिस्टर मैग्रेगस के गार्डन में गया और वहाँ पर उसने लेटस, फ्रेंच बीन्स ऐसे कुछ खाया और बाद में ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सली. पार्सली मीन्स अजवाइन का जो छोटा सा पौधा होता है उसके पत्ते खाने के लिए वहाँ पर वो गया. जस्ट अराउंड द एंड ऑफ cucumber frame he saw Mr. McGregor's, who angrily jumped up and ran after him. After that, Peter went to in the cucumber's frame, and that time he saw there Mr. McGregor angrily jumped up and ran after him. Stop thief! मिस्टर मैग्रेगर ने पीटर को देख लिया था और उसको पकड़ने के लिए वो जोर से बहुत गुस्से से आ रहे थे. पीटर वॉज इनक्रेडिबली फ्राइटन. He ran as fast as he could around the garden, trying to find the way back to the gate. And when Peter saw Mr. McGregor, Peter was incredibly frightened. Incredibly means हमें विश्वास नहीं होगा, इतना वो घबरा गया था और उसको अभी कहाँ से भागे ये वो सोचने के पहले ही जोर जोर से भागने लगा था. पीटर ran into gooseberry's net and got caught by the large buttons on his new red jacket. और गूसबेरी का जो नेट था वहाँ से वो भागता हुआ उसका जो रेड कोट उसने पहना था उसका बटन, रेड जैकेट का जो बटन था वो वहाँ पर वो नेट में अटक गया और पीटर जोर से घबरा गया. मिस्टर मैग्रेगस came up with a rake
But Peter wriggled out of his jacket just in time and took off across the garden again. और जैसे ही पीटर दौड़ रहा था, मिस्टर मैग्रेगस ने उसके ऊपर रेक मतलब अ टूल टू रिमूव लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड वो फेंका, लेकिन पीटर ने उसका जो रेड जैकेट था वो रिगल मतलब सर्किल गोल गोल घुमाते हुए उसको उसने अक्रॉस द गार्डन अगेन और वो गार्डन की तरफ से भागने लगा. पीटर रैबिट रश्ड इनटू अ टूल शेड and jumped into a can that was unfortunately full of water. बच्चों देखो, हमें समझ में आया पीटर ने उसकी मम्मी की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसको कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. अभी पीटर रैबिट रश्ड इनटू अ टूल शेड and jumped into a can that was unfortunately full of water. और जो कैन था उसमें वो जाकर गिरा कि वो कैन पूरा पानी से भरा हुआ था. Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, perhaps hidden underneath a flower pot. He carefully turned them over, looking under each one. Then Peter sneezed. मिस्टर मैग्रेगस उनको पता था कि पीटर यहाँ पर ही कहीं पर छुपा है, और जैसे वो उसको ढूंढ रहे थे तो पीटर की स्नीज, पीटर की छींकने की आवाज़ आ गई. कैरेस्टिस मतलब द साउंड ऑफ स्नीज. मिस्टर मैग्रेगर वॉज सून आफ्टर हिम एंड ट्राइड टू कैच पीटर, हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो. The window was too small for Mr. McGregor and he was tired of running after Peter. मिस्टर मैग्रेगर उनको पीटर को पकड़ना था, इसलिए वो वहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे थे. लेकिन अभी पीटर जो है वो छोटी सी जो विंडो थी वहाँ से निकल गया. बट मिस्टर मैग्रेगर वॉज ट्राइड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, लेकिन वो विंडो स्मॉल होने की वजह से वो वहाँ से जा नहीं सके. पीटर रैबिट मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लुकिंग फॉर द गेट. अनफॉर्चुनेटली ही हैड लॉस्ट हिज वे एंड कुड नॉट गेट आउट ऑफ द गार्डन. अभी विंडो में से बाहर आ गया, लेकिन उसको उसका रास्ता जो है वो मिल नहीं रहा था. ही हैड लॉस्ट हिज वे एंड कुड नॉट गेट आउट ऑफ द गार्डन. उसको गार्डन से बाहर छुटकारा पाना था, लेकिन उसको रास्ता याद नहीं आ रहा था. ही आस्क्ड रैट फॉर डायरेक्शन. मैम, कुड यू टेल मी द वे टू द मेन रोड. और उसको रास्ता मिल नहीं रहा था, तो उसने रैट को पूछा कि मुझे मेन रोड का रास्ता बताओगे. देन रैट सेड, नो आई कांट. ही इवन आस्क्ड अ कैट. देन ही आस्क्ड टू द कैट, बट द कैट सेड, don't disturb me, I am busy. Suddenly he saw Mr. McGregor hoeing his onion patch, and just beyond him was the gate. Peter sprinted across the onion patch and slipped under the gate. और ये पूछते उसने देखा कि मिस्टर मैग्रेगर हुइंग मतलब जो सॉइल जो यूजिंग अ टूल कॉल्ड हू टर्न ओवर सॉइल इन अ गार्डन. सॉइल निकालने का जो हथियार होता है उसको हुइंग बोला जाता है. तो वो ऑनियन पैच में वो लेकर आ रहे थे, और जैसे ही पीटर ने उनको देखा उसको समझ में आ गया था कि अभी यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ. एंड स्प्रिंटेड मीन्स क्विक, उसने इतनी क्विक एक्शन की विद इन अ मिनट across the onion patch and slipped under the gate. And Peter said, thank God I found the gate. Let me run home to mother. Peter flopped down on the nice soft sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes. Why, Peter, what's the matter? I got lost in Mr. McGregor's garden. I am sorry, mother. I should have listened to your warning. And Peter says sorry to his mother. And he said he apologized to his mother.
He said, I should have listened to your warning. I am sorry to say that Peter was not very well that night. His mother put him to bed and made him some tea. Flopsy, Mopsy, and Cottontail had bread, milk, and blackberries for supper. Supper means dinner. और उस दिन पीटर बहुत भागता हुआ घर तक आया था, इसलिए उसको उस रात को नींद नहीं आ रही थी. उसके मम्मी ने उसको टी बना कर दी और इस प्रकार से मम्मी ने फ्लॉप्सी मॉप्सी और कॉटन टेल उनके लिए भी ब्रेड, मिल्क और ब्लैकबेरीज ये सर्व की थी डिनर के लिए. स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चों ने बड़ों की बात नहीं मानी है तो इस तरह से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. द मॉरल, दिस इज़ द गुड लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस द टेल ऑफ पीटर रैबिट. So students, you always listen to your mother, father, parents, whoever elders said to you these things, you listen it and follow it. I remain here. Thank you. Have a nice day.